Wow, what a lovely topic. God in human form, 51. स्टार्ट करें. Chapter 10, Contemplation of God's Manifestation, 51, page number 154. God in Correct. God in human form. The first and the foremost form of the Lord for us is our mother. The Vedas says, Matru Devo Bhav, let your mother be your God. Who but the mother does the newborn baby see first the Lord himself stand there as the embodiment of tenderness. We can move on form of worship of the mother to the worship of Mother India and still further to the worship of Mother Earth. But in the beginning, the mother is the highest form in which the Lord appears before the child. It is quite possible to attain moksha through the worship of the mother. Worship of the mother means worship of the Lord as love incarnate. The mother is just the medium. The Lord endows her with his affection and impels her to toil for the child. The poor mother does not understand why she feels so much love and affection for the child. Does she do everything for the child with the calculation that is might be of use to her in her old age? Not at all. See, she undergoes labor pains while giving birth to the child. That pain makes her passionately attached to her child. That pain makes her love the child. She just cannot help loving it. The mother is the embodiment of boundless service. To worship her is the highest form of the worship of the Lord. It is as mother that we should address the Lord. Is there a word noble and more exalted than this? Mother is the most prominent and simplest manifestation of the Lord that we come across. Learn to see God in her, and then in the Father and in the teacher. The teacher imparts knowledge to us, makes of us human beings in the true senses. How indebated are we to him? Thus, we should start with seeing God in the conspicuous form of the mother, the father, the teacher, and the saints in this order. Where else can we see him if not there? कितना अच्छा सीक्वेंस दिया है ना. हाँ, मदर फादर और टीचर का. और आगे भी कि पहले it is very natural to love mother, and that love can be considered as bhakti. Love is bhakti actually. तो पहले माँ को तो नेचुरली लव करते ही हो, उसको एक्सटेंड करो, extend it to Mother Earth, then extend it to Lord. Mother is the highest form in which the Lord appears before the child. क्योंकि न्यूबॉर्न के लिए जब तक वो असहाय है, मदर इज लाइक गॉड ओनली ना, सब कुछ कर देती है. Yes. बिना कुछ मांगे, बिना कुछ लिए, बिना किसी अपेक्षा के. भगवान वैसा ही होता है ना. बराबर. और उसको समझ में भी आता है कि इसको अभी ये चाहिए, उसको ये चाहिए, वो वैसा ही भगवान भी है. हाँ. So it is easy to see God in mother. लेकिन
मदर का ये भाव यदि ध्यान में रहे तो anybody who has had love for mother and who has been a mother can connect with this, the godly qualities. And mother is a more conspicuous, more tangible, more understandable form. So, mother is God in human form. तो यदि उतना एक बार एक कनेक्शन यदि माइंड में बैठ जाए तो वहां से हम और बहुत कुछ आगे ले जा सकते हैं। लेकिन कितना सुंदर कनेक्ट किया है विनोबा जी ने, और वेरी सिंपल वे में बताया है उन्होंने। वो तो गजब ही है विनोबा जी का। और फिर लास्ट में जो समरी कर दी कि मदर के बाद में फिर फादर भी, बिकॉज फादर का भी डेडिकेशन उसी प्रकार का होता है फिर, लेकिन वो थोड़ा Yes. समझने में टाइम लगता है। एंड नेक्स्ट कम्स द टीचर, टीचर एंड देन Yes. और भी जो भी पूजनीय है हमारे लिए, जिसका हम सम्मान कर Saint. सकते हैं, जिनसे हम Saint. सीख लेते हैं, सेंट्स है, सेजेस है, और वाइज पीपल दैट वी इंटरैक्ट एंड लर्न फ्रॉम। कितना एक बार इफ यू कैन सी गॉड इन ह्यूमन फॉर्म with the help of that mother वाला connection like God. इसके लिए उन्होंने वो मैनिफेस्टेशन दिया है। Yes. और ये कितना सुंदर बात बोली है कि she has that dedication and love for the child because of the pain that she has gone through. हाँ, मैं वही बोलने वाली थी कि मतलब मुझे भी अभी पता चला, पहले तो मुझे नहीं पता था, बट ये पढ़ने के बाद पता चला कि क्यों इतनी मतलब बच्चे के लिए माया रहती है, बिकॉज ऑफ दैट पेन। क्योंकि इतनी मुसीबत से, इतनी तकलीफ से उसको पाया है। जो लोग गरीबी से उठ के ऊपर आए होते हैं, उन्होंने एक एक छोटी छोटी चीज को मेहनत कर करके इकट्ठा किया होता है घर की, उनके लिए वो चीजें बहुत कीमती होती है। वो आसानी से उसको छोड़ नहीं सकते, यूं ही नहीं बर्बाद कर सकते। धन आ भी जाए, बच्चे उनके कमा भी लेवे, तो भी उनका वो लगाव उन चीजों से और बचा के रखने के अंदर वैसा ही रहता है। तो क्योंकि कष्ट से वो, कष्ट पाने के बाद में वो आया है, एंड दैट इज व्हाई वी आर सो लकी टू बी बोर्न ह्यूमंस, दैट वी आर रजस प्रधान, पेन प्रधान। इसलिए हर एक एक्सपीरियंस को एक्चुअली पेन कहा गया है। पेन इज नॉट सेपरेट फ्रॉम एनी एक्सपीरियंस। जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है वो पेन है, सांख्य तो यही बोलता है। और यानी कि each of it can be used for growth. Whatever tiny experience, everything can be used for your personal growth. हर एक पेन को हम सत्व में बदल सकते हैं। यानी जितना भी पेन आ रहा है, every pain is for helping us to realize our freedom. इवन बॉडीली भी, Of course, वो तो सबसे पहले माँ का पेन बॉडीली पेन ही है ना। लेबर पेन इज इन द बॉडी, नो? उसी का तो ये प्रेम की बात कर रहे हैं वो। हाँ, बहुत बड़ी बात है, मतलब ये पूरे पैराग्राफ में ये मेन बात है। खान में हीरा मिल गया, that pain makes her love the child. और वो सेकंड बात उसके आगे जो कही है कि वो ये तो नहीं सोच कि मैं अभी इसका ये सेवा करूं ताकि वो बुढ़ापे में मेरी देखभाल करेगा। दैट्स नेवर द थॉट इन द माइंड ऑफ अ मदर और अ फादर। नहीं ना, बराबर है। और छोटा बच्चा क्या क्या नहीं करता है, माँ को अंदर सुसु पॉटी भी करता ही है, लात भी मारता है, हाथ भी मारता है,
हर प्रकार से कष्ट ही देता है, सोने नहीं देता है, खाने नहीं देता है। पूरी रात बेचारी जागती रहती है, और जब भी माँ खाना खाने बैठती है तभी उसको पोटी जाना रहता है। हाँ। ये बहुत सभी माओ के लिए, सभी माओ यस के लिए। यस। या तो वो वॉमिटिंग करता है, या तो वो पोटी जाता है, वही टाइम पे पोटी जाते हैं उसको आती है। एकदम। इसके लिए ना जॉइंट फैमिली होना बच्चे को बड़ा करने के लिए बहुत हेल्प करती बहुत है। बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि अभी के टाइम में ना, अभी अभी का जो टाइम है ना, उसमें न्यूक्लियर फैमिली में बच्चे को बड़ा करना इज नॉट इजी। नॉट इजी एट ऑल। स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और वो बच्चे के ऊपर आता है। बिल्कुल। आपको पता है टाइप 1 डायबिटीज बच्चे में अभी बहुत आ रहे हैं, छोटे बच्चे में बहुत आ रहे हैं। मतलब मत, समझ लो कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हो रहे हैं। तो वो टाइप 1 डायबिटीज ना इनसिक्योरिटी की वजह से आता है। करेक्ट। हाँ, वो बच्चा इनसिक्योर हो जाता है क्योंकि अकेला माँ, होता है ना। हाँ, माँ को संभला नहीं जाता, वो डे केयर में भेज देती है, पूरा दिन ऑफिस में रहती है, ये वो सब। और उसकी वजह से वो डायबिटीज आता है उसमें। इकलौता बच्चा रहा तो इनसिक्योर रहेगा ही। हाँ। इसलिए 3-4 बच्चे तो होने चाहिए। अभी के टाइम में किधर में हम 3 4 बच्चे, एक को संभला नहीं जाता, 3 को कैसे संभालेंगे। इनफैक्ट एक को संभालना ज्यादा मुश्किल है। 3-4 होते हैं ना, वो आपस में एक दूसरे को संभाल लेते हैं। हाँ। एक तो बडीनेस रहता है, हाँ, एक दूसरे की समझ आसान हो जाती है। हम बराबर अपने है। बड़े बड़े के ढंग से सोचते हैं, बच्चे हम्म। आपस में जल्दी समझ जाते हैं। मेरे को एक इंस्टेंट कभी नहीं भूलेगा। मेरी बड़ी सिस्टर, उसके 3 बेटे हैं, तो बॉम्बे में आए हुए थे, छोटे ही थे सभी। शायद बड़ा वाला 6-7 साल का था, बीच वाला उससे 1.5-1 साल छोटा है, छोटा वाला उससे 1.5-2 साल छोटा है। हुँ? ऐसे यानी 2 साल, 4 साल और 6 साल, या 3, छोटा वाला 3 का होगा, है ना, उतने ही बड़े थे। तो इन लोगों ने तय किया कि एक रेस्टोरेंट में यहाँ पर खाना है। वो बड़े वाले को थोड़ा सा जानकारी थी, समझ थी, तो उसने तो कुछ क्या बोला कि क्या डोसा खाना है, या आई आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। कुछ तो उसने एक डिश का नाम लिया, दूसरे लोग बोला हाँ, बड़े भैया के बहुत ये था उनको, हाँ, हमको भी ये खाना है। ठीक है, सबके लिए मंगाया गया। ये बीच वाला जो था, वो ऐसे बैठ के देख रहा है, उसको घूर रहा है। फिर बोलता है मेरे को नहीं खाना है, मेरे को भूख नहीं है। तो उसकी माँ तो परेशान हो गई कि अरे, अभी तो तूने बोला इतनी भूख लगी है, अभी तेरे को नहीं खाना है क्या? बड़ा वाला बोलता है नहीं मम्मी, इसको ये खाना नहीं आता है इसलिए ऐसा बोल रहा है। फिर उसको दिखाया उसने, देख ऐसे करके ऐसे खा, और इतना फटाफट खाने लगा वो। उसको सच में बेचारे को भूख जोर से लगी थी, लेकिन ये बोलने को नहीं आता कि मेरे को खाना नहीं आता है। हाँ। खाना नहीं आता है, उसके बदले खाना नहीं है बोलता है। और वो छोटा बराबर है। वाला खाली परेशानी हो रहा था, थोड़ा इधर उधर ढूंढ रहा था। उसने भी देखा ये दोनों कैसे खा रहे हैं, देख रहे, फिर उसने भी खाना शुरू किया कि कैसे खाने का। वो एक दूसरे के साथ में रह के सीखते हैं। वही तो, आपस में समझा लेते हैं एक दूसरे का, because they are और वो, same age, you see, so they understand certain things without saying. यस, और बड़े बराबर है। वाला अपने आप ही बाय डिफॉल्ट अपने आप छोटे वालों को देख लेता है। वो मैच्योरिटी आ जाती है। वो एक तो वो जो, आई डोंट नो, वो कनेक्शन रहता है जो जीन्स का है, ब्लड का है, जो भी बोलो, दैट मेक्स यू जस्ट डू इट। कि मेरा भाई है, एक मेरी बहन है, वो एक बहुत निष्पाप रिलेशन बनता है। और बिना भाई बहन के दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस लव विदाउट एनी रीजन। ओनली भाई बहन का जो प्यार है वो ही एक ऐसा है, भाइयों भाइयों का या बहनों बहनों का। ओनली बराबर है। दैट लव इज एब्सोल्युटली प्योर, विदाउट एनी कि भाई ये मिलेगा ये नहीं मिलेगा करके। सही है।
आज भी मतलब हम लोग, मैं सबसे बड़ी हूँ, मैं घर पे जाती हूँ ना, तो मेरे दोनों भाई मेरे आगे पीछे खड़े रहते हैं। वही, और बहुत नेचुरली होता है वो। यस, मतलब लेने जाने के लिए से लेके पूरा ट्रेन में बिठा के आने का, ट्रेन चली जाए तब तक रुकने का, सब बारिश में वही, भी। मैंने उसको बोला मुझे छोड़ दे, इधर मैं चली जाऊंगी, नहीं right? छोड़ा, मेरे को ट्रेन में बिठा के, खुद भीगा लेकिन मेरे को बिठा के गया। वही, यस, ये भाई बहन के बीच में ही हो सकता है। तो जो वेरी ट्रू। इकलौते बच्चे हैं, आई एक्चुअली फील सॉरी फॉर देम। दे डोंट नो यस, what it means to have a brother or a sister. सही है। They're losing out on a very, very, very important feeling of uh, relationship and emotions. They'll never be satisfied. And they won't even know what is it that is missing. बराबर है। आज मेरे ही घर का एक्सपीरियंस ले लो कि भले ही हम लोग मतलब वैसे न्यूक्लियर है, वैसे जॉइंट फैमिली है, बट बड़ा वाला है ना, वो मतलब धैर्य कुछ नहीं करता है ना, तो वो आसानी से कर देता है, ठीक है ना, जाने दे, वो वैसा ही है, वैसा ही है, तो वो सब कुछ करता है। बट बहुत फर्क छोटा है। वाला, मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं। That's another learning. वो एक अलग प्रकार की और एक लर्निंग होती है, सोशलाइजिंग, कि कैसे हर कोई हाँ, अलग अलग सोचता है और कैसे उसका हो जाता है सब। हालांकि एक दूसरे को रखे बिना खाते नहीं है, सोते भी साथ में ही है, झगड़ा भी हाँ, इतना ही करते हाँ, हैं, आपस में वही रहते भी उतने ही प्रेम लव से हेट है। रिलेशनशिप जो होता है। हम्म, हाँ, एक दूसरे के मतलब बिना भी नहीं चलता है, और साथ में होंगे तो हाँ, कंपटीशन वैसे भी उस, होता है, झगड़ा भी होता है, सब होता है। लेकिन वो झगड़ना ही वही एक प्यार है। हाँ वो भी That's one way of expressing love. Just like pain is what causes the attachment. वैसे तो हम कहते हैं दुखानुशयी द्वेष, देश है। लेकिन ये क्या है? ये जो दर्द है वो ही अपनापन लाता है, वेरी ट्रू। क्योंकि ये चल, दर्द हमने चुन के सहा होता है। हम्म, चलो, वो भी कहते हैं ना कि जिन लोगों ने, जैसे अभी कोई तुम बाहर बाहर गए हो, बस के अंदर ट्रैवल कर रहे हो, कुछ आपदा आ गई, तो सारे बस वालों के पास में सेम प्रॉब्लम है, तो दैट प्रॉब्लम मेक्स देम कम टुगेदर, हाँ, दैट मेक्स देम अंडरस्टैंड ईच अदर, कि दुख के अंदर सब साथ हो जाते हैं, यस, क्योंकि दुख कॉमन है। ये मुसीबत में से निकलना है, और उसमें कितने कभी कभी लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स बन जाते हैं। ये मुसीबत एक जैसे साथ में उठाई थी। जैसे कि आपका हुआ था ना, वो मालसर में गए थे तो कैसा हो गया। एग्जैक्टली, ब्रॉट एवरीवन सो क्लोज टू ईच अदर। हाँ, वो एक अलग ही यस, चीज होती है। बराबर है। तो यदि हम इतना सा ये देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं, तो हम कई बार ऊपर वाले को कंप्लेन कर देना कि हमारे को ये दुख क्यों दिया, कि उसकी याद हम्म, दिलाने के लिए दिया, कि वो है तो उसकी मदद लो। तो जो पेरिशेबल है उसको छोड़ो, इम्पेरिशेबल है उसकी तरफ ध्यान दो। ये तो मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। कभी नहीं, पता नहीं मुझे हर चीज में याद आ जाता है। छोड़ दे, लेट गो, लेट गो, लेट ऊपर से बोला भी उसको। गो। हाउ नाइस, हाउ नाइस। चलो, चलो, पढ़ते हैं आगे। नंबर 8, लाइकवाइज, हाउ नाइस। ये तेरे को बंद करना है तो बंद कर, नहीं 47, मेरे को, मैंने 57 देखा टाइम। हाँ, है नहीं टाइम, नहीं, है। टाइम है, पूरा हो जाएगा शायद। हाँ, अभी आपने बोला ना हाउ नाइस, वैसे ही है। लाइकवाइज, हाउ नाइस वुड इट बी, we could see him in children, ध्रुव, प्रहलाद, नचिकेता, सनक, सना, सनादन, सनंदन। सनातन, सनंत कुमार, Sanat Kumar, all these were children. But Vyasa and other authors of the Purans, the ancient mythological tales, are
so fond of them that they are never tired of talking about them, of extolling them with love and admiration. Even as children Shuka, Shankaracharya, Jnanadev were free from desire and attachment. Now, now here else did the Lord manifest himself in a pure form. Jesus was greatly fond of children. Once his disciples asked him, "You talk so much about the kingdom of God. Who can enter it?" Jesus lifted in his arms a child standing nearby and said, "Only those who are like this child." What Jesus said is indeed true. Saint Ramdas was once playing with children. Someone asked him with surprise, "What has happened to you today?" Ramdas said, "वये पोरते थोर होऊन गेले, वये थोरते चोर होऊन ठेले." Children have attained greatness while those advanced in age have proved to be Scoundrels. scoundrelness. Scoundrels यानी As बदमाश, शैतान. as the age advance in innocence gets and eroded. Eroded. Then जंग लग जाने से जो जैसे क्या बोलते हैं, खराब होता रहता है ना, गलता रहता है. Eroded. Hardly thinks of the Lord. The minds of children are pure and ये क्या लिखा है मैम? Unsullied यानी कि Unsullied. unsoiled, वो प्योर, गंदगी के बिना, डर्ट के बिना, डस्ट के बिना. We teach a child, "Do not tell lies." He asks, "What is lies?" Then That's we it. explain What a telling question. that the statement must correspond to the facts. The child is non-pulsed. How can one make statement that does not correspond to the facts? It is like telling that a rectangle must be called a rectangle and not a circle, and the child is surprised at this teaching. Children are the purest manifestation of God. Adults give them wrong ideas. In short, if we cannot see the Lord in the mother, the father, the teacher, the saints, and the children, we will not be able to see him in any other form, as these are his best manifestations. One must first learn to recognize him in his gentler manifestations, wherein divinity is inscribed in bold capital letters, where it is the most conspicuous. Conspicuous यानी जो ठीक से दिखता है. Inscribed यानी छपा हुआ है या गोदा हुआ, लिखा हुआ. लेकिन ये कितना जो सत्य के बारे में है, प्रतिपक्ष भावना सत्य की कैसे हो सकती है? ऐसे ही ना, क्योंकि एक्चुअली सही है, सत्य ही है. अब lie is the अविद्या. अविद्या की वजह से we are lying. बराबर है. तो इनफैक्ट मैं एक एक्सरसाइज हमेशा करती हूँ सत्य की, तुम लोग के साथ भी की होगी, याद नहीं है मेरे को. बच्चों के साथ तो ये अवश्य करती थी जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी. उनकी योगा क्लास के अंदर जब सत्य का टॉपिक इंट्रोड्यूस करना होता था तो मेरा फर्स्ट एक्टिविटी यही होता था कि यू हैव टू स्पीक 5 sentences which should be at least 5 word long. 3 वर्ड का सेंटेंस नहीं बना सकते. हाँ, सेंटेंस में कम से कम 5 वर्ड्स होने चाहिए. 5 सेंटेंसेस बोलने हैं, अपने आप के बारे में बोलने हैं. खाली एक कंडीशन है, everything that you speak should be a lie.
अच्छा, सबसे पहले तो वो 3 ही वर्ड के सेंटेंस बना सकते थे, चौथा वर्ड बड़ी मुश्किल से आता था, 5 वर्ड का एक सेंटेंस भी बनाना मुश्किल होता था, और एक या दो किसी ने बोल भी लिया, कोई ज्यादा स्मार्ट है या कोई तैयारी करके आया है, तीसरा तो नहीं बोल पाता था। छोटे हों या बड़े हों, they have not gone beyond speaking 2 sentences of 5 words each, which is a lie about themselves. दूसरा कोई सोचेगा नहीं मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, नहीं मैं करता हूं, नहीं मैं करता हूं, एवरीवन फेल। तो मैंने कहा व्हाट डज दिस प्रूव टू यू? दैट lie is not easy, definitely it is not natural to you, but truth is. Now speak 5 sentences more than 5 words long about yourself which is truth. तब फट 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 हो गया, बहुत सारा है बोलने के लिए, और लंबे लंबे सेंटेंसेस बनाए, 5 वर्ड्स ही क्यों, 10 वर्ड्स के भी। So truth is natural to you. नेचुरल। मैं भी सोचने लग गई कि ऐसे कौन से 5 वर्ड है जो लाई बना सकते हैं। तो बोल अपने आप के बारे में, कोशिश कर दो, 1-2 सेंटेंसेस बना अपने आप के बारे में। पहले तो सब लोग यही बोलते हैं कि माय नेम इज बॉबी, हाँ कुछ ऐसे ही। मैंने कहा 3 वर्ड्स का हुआ, ओके ओके ओके। तो बॉबी कुछ ना था लाल, ओके, फिर भी 4 ही वर्ड हुए, तो 5 वर्ड्स के बनाओ। इसलिए 5 वर्ड्स देती हूँ, नहीं तो ये ना ऐसे तो तुम एक वर्ड खाली रॉन्ग बोल के झूठा कर सकते हो, बट टू रियली लाई 5 words का सेंटेंस इज अ स्मॉल सेंटेंस यार। या स्काई इज ब्लू, तो स्काई इज ब्लू नहीं बोल के द स्काई इज रेड, तुम ऐसे बोल के झूठ निकल सकते हो, बट दैट्स नॉट अ लाई। A lie should be at least a proper lie. तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। हाँ, अच्छा बताया। मतलब रेक्टेंगल को रेक्टेंगल ही बोलना है तो और क्या बोल सकते हैं। मतलब बच्चा इतना प्योर रहता है, हम लोग ही उसके अंदर मिक्सर डालते हैं। मतलब हम लोग Exactly. डालते नहीं है, मतलब बोलने का मतलब हम लोग डालते नहीं है, वो हमारा देखते हैं व्यवहार और फिर वो ऐसा मान लेते हैं। So natural for them to learn from what is in the environment. यस यस। हाँ। और अभी के स्मार्ट बच्चे तो बोलेगा तू दादी के साथ ऐसा कर रही है, तू दादी बनेगी, मैं ऐसा करूंगा तो तेरे को कैसा लगेगा। सीधा। चलो, अच्छा रहा चलो आज का good. क्लास, बहुत अच्छा सीखने को मिला। हाँ, थोड़ा भी पढ़ो लेकिन मजा आता है इसका, यस, इतना अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया ना। बहुत ही मजा आता है, एकदम अंदर तक जाके बैठ जाती है बात। हम्म, जैसे सांख्य के होमवर्क की बैठती है। चलो। लेकिन कितना वो एकदम से ऐसे अपने आप ही बना ना होमवर्क, हाँ, डिस्कशन में से ही। ये वो ज्यादा लोग रहते हैं ना तो मजा आता है। एग्जैक्टली क्योंकि ज्यादा अच्छा डिस्कशन हो पाता है, अलग अलग आइडियाज भी आते हैं, तो और थोड़ा सबके कुछ अलग सोचो अलग करो माइंड, क्या करें ताकि लोग आवे, अटेंड करें ठीक से, मोटिवेट करना पड़ेगा सबको। पकड़ पकड़ के लाना पड़ेगा इन लोगों को, ऐसा करना पड़ेगा। चलो।